So, a very good morning to one and all present here. On behalf of Medicap's Innovation and Incubation Center and E-Cell of Medicap's University, I, Dr. Sarita Kansal, welcome all of you in today's expert talk on product fit for market. First of all, I am pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. D.K. Patnaik, sir, Pro Vice Chancellor, Professor D.K. Panda, Registrar, Dr. Pradyumna Yadav, today's speaker, Dr. Lalit Dubey, all the deans, head of the departments, head of E-Cell, Professor Ram Janan Singh, the members of MIIC, all the faculty members, and my dear participants. Medicaps is one of the brand names in the arena of technical education and is contributing in making Indore an educational hub. Since its inception in July 2000, the group consistently aimed at creating an ideal ambience for budding technocrats and helping them to grow like true professionals. In year 2015, we got the approval from UGC to be a self-financed university and admission for the same is started in 2016. Since then, we have included many courses other than engineering like management, agriculture, pharmacy, commerce, science, arts, etc. Since we have created our own brand in Central India, till date, more than 12,000 students have been passed out from Medicaps and they are working globally. 7,000 students currently studying in various programs. MIIC, Medicap's Innovation and Incubation Center, was established in the year 2018 with the aim of provoking innovation and backing startups. We believe in setting the stage for energetic, enthusiastic, and aspiring entrepreneurs. We encourage talents and innovators, and opportunities provided to the potential change makers of the industry, thereby contributing towards positive change. MIIC supports technical and non-technical ventures and lab stage innovation. This paves the path for potential business idea to reach to the market. We are fortunate enough that today Dr. Lalit Dubey is with us. He is Associate Professor in Acropolis, Indore, completed his PhD in Commerce. He's contributed to MP government in economics and social development of slum dwellers living in MP with special reference to Indore district. He holds MBA in Marketing Management, LLB, MPhil in Commerce, MCom in Accounts and Taxes, and BCom degree. He has total 21 years of teaching experience and 2 years of industry experience. His field of interest is research in rural and slum areas. He holds many positions in his career like administrative head, supervision, HR maintenance, discipline maintenance, NSS officer, working with active members for organizing national level seminars and many more events he has conducted, which is added in his feather. He has published more than 25 research papers in journals, national and international conference. He published a book named Advertisement and Brand Management. So we are fortunate enough
that Dr. Lalit Dubey is with us, who is going to talk about product fit for market. So without wasting much time, I will hand over the platform to Dr. Lalit Dubey for his expert talk. Lalit sir, over to you. Thank you, madam. So, first of all, here I want to express my cordial congratulations to Dr. D.K. Patnaik sir, who has been recently promoted on the post of Vice Chancellor, Medical University in Bangalore. And I express my thanks to Co-Chancellor Dr. D.K. Panda sir and Registrar Dr. Pradyumna sir, Pradyumna Yadav sir, who has been provided me this opportunity, and to Dr. Harish Bapat sir, Dean Management, DKEPS University. Medicaps University is a family for me, and I am still also one of the member of this very huge family, having the friends like Dr. Sunil Mishra, Dr. Haldar Sharma, Dr. Mukesh Sir, and some other faculty members. तो यहाँ जो है वो कोई भी चीज ऐसी नई अपने मेरे लिए नहीं है, सभी चीजें जो है वो अपने उसी के साथ में सकती हैं. Today I am going to express my views on the topic whatever has been given by the opportunity by the Garita Kansal Madam and Professor Dr. Ramjanam sir. That product fit for market, that is the today's topic for our discussion. I am not going to express any special thing because a number of persons and mostly out of you also are doing some kind of and engage yourself in the entrepreneurial kind of the activity. आप लोग खुद भी जो है उसमें से बहुत सारे लोगों के अपने खुद के बिजनेस हैं, and after all giving sufficient time period and your overall efforts to the market, definitely you become after some time gradually fit your product, success to get fit your product in the market as a popular product, popular brand name in the market of your product, that the customer basically start to promote your product in the market, mouth to mouth publicity where the advertisement is not required. So this kind of the situation is to be said as the product fit for market. फिट का मतलब हुआ, मतलब अपन समझते हैं, अपन कोई सा भी ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो फिट का मतलब होता है फिट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा लूज है देन इट विल नॉट बी कन्वीनियंट एंड विल नॉट लुक so beautiful whenever we are wearing it. And when we are out of the dress, it means it is much more shorter as compared to our shape and size. In that case also you can see. Then I am going to share my screen here, then we can understand the situation that what the product market fit actual fit. Sir, any issue? Madam, I am going to share my screen. Okay. You can share. एक मिनट सर को, सर के पास राइट है, आप ये शेयरिंग बंद कर दीजिए. हाँ मैं कर देता हूँ मैं. ठीक है. So whenever we are going to, Lalit sir, sorry to interrupt you. Can you make it full screen? okay madam. मैडम फुल स्क्रीन तो अब F5 अपन इसमें दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो आ जाता है, बस यदि नहीं आ रहा है. सर स्लाइड शो में जाके आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं.
हाँ स्लाइड शो में कर लीजिए। स्लाइड शो में कुछ दिख रहा है ये फ्रॉम द बिगिनिंग कर सकते हैं सर आप। फ्रॉम द बिगिनिंग? हाँ देखिए सर। I guess, Yes, is it visible now? yes, यस sir. यस। Then the basic definition, whatever is given here, not much more important, but the basically provide a basic idea regarding the product fit for the market. That product market fit describes a scenario which a company's targeted customers are buying, using and telling others about the company's product in number large enough to sustain that product's growth and profitability. It is the simple definition of the product market fit. जैसा कि मैंने अभी बात करी आपके सामने कि मतलब प्रोडक्ट फिट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट in need to advertisement regarding the product much more. Only at the time when we are going to make familiar to the customer about product whatever going to produce first time, then the advertisement should be required. But thereafter, gradually, when we are supply our product whatever we are producing in the market, then after some time, after getting that the consumers have started to consume our product whatever we are using, then in that case they should be satisfied, and they should not only be satisfied but they should be delighted after consuming what you are serving them in kind of the new product. Because we know that a number of products already are running in the market to satisfy the same kind of the want of the man. मतलब कि आपकी जो प्रोडक्शन आप मार्केट में देने जा रहे हैं वैसे बहुत सारे प्रोडक्शन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप एक नया प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर जो है प्रवेश कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि मतलब अपने फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ क्राउडेड बस और द क्राउडेड ट्रेन एट द बॉम्बे। अपने को मालूम है बॉम्बे में रेलों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, खसम खस भीड़ होती है, बसों में खसम खस भीड़ होती है और बहुत घुसना मुश्किल होता है। लेकिन देखा है हमने कि जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, वो उतनी भीड़ में भी जगह बना लेते हैं और बड़े आराम से खड़े भी हो जाते हैं और भीड़ से थोड़ी देर बाद वो कहीं ना कहीं बैठे हुए मिलते हैं। दैट इज द थ्योरी एप्लीकेबल for the product to be fit in the competitive today's scenario of the market. That is the theory applicable where also there a number of product ठसाठस product already available in the market, कोई market में जगह नहीं है, but still you have to make a space for your product in the market to be fit in the brain, in the heart of the customer. हमको मार्केट में जगह नहीं बनानी है, we have to make the space in the mind of the customer, in the heart of the customer. Automatically, whenever somebody is asking about to satisfy the particular type of the want, then the name of your product or the brand of your product should come out from the tongue of the customers automatically without getting any stress on their brain. That is called fit प्रोडक्ट फिट इन द मार्केट। धीरे धीरे आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों की बिल्कुल जीवान पे चढ़ जाना चाहिए, दिलो दिमाग पे छा जाना चाहिए और लोग आपके दीवाने हो जाने चाहिए। दीवाना वर्ड उसके साथ में लगाना बनता है कि इफ यू आर गोइंग टू फिट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड यू आर गेटिंग सक्सेस टू बी फिट इन द मार्केट, डेफिनेटली द पीपल विल बिकम दीवाना फॉर द कंजम्पशन ऑफ योर प्रोडक्ट इन दैट केस, and you will be a successful manufacturer or the marketer in the today's market scenario, competitive market scenario also. Then some of the example with the some of the example we can understand with the help of the example of the crowded bus कि crowded bus में चढ़ना, उसका छोटा सा सिरा पकड़िए, पहले उंगली रखने की जगह बनाइए, धीरे धीरे पंजे को सरका के खड़े रहने की जगह बनाइए, पकड़ बनाइए,
और बाकी पूरी बॉडी बाहर है, अभी अंदर गई नहीं है। आप धीरे धीरे जगह बनाते हुए, मेकिंग द स्पेस in between of the people, you have to insert yourself and get the particular space to be sit and getting the space inside the crowded bus, and the same theory will be applicable in the crowded ट्रेन्स आल्सो, कि वहां पे बहुत भीड़ होती है और लोग फिर भी अपने चढ़ने उतरने का जरिया बना लेते हैं, एंड दे फील कंफर्ट, वो उस चीज में हैबिचुअल हो जाते हैं। हमको लगता है कि इतनी भीड़ में जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, लेकिन वो डेली उस काम को कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर फीलिंग एंजॉय टू डू such kind of the activity in their daily life. They are making the space in the crowded area in success in that particular field. So that is also a type of the practice. If you are doing continue practice in the market, then definitely you also will be successful marketer or the successful person who will be capable to fit their product, whatever they are producing in the market successfully. With example, we can see here that what is the situation in the present when newly you are going to launch your product in the market. यहाँ पे इस बच्चे को अगर हम देखें कि have a look on the overall situation of this child, that having a bag and the mobile phone and wearing his father's coat and entire dress, I think with the along with the shoes. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रेस है इसको फिट है क्या? क्या इसको फिट की डेफिनेशन में हम रख सकते हैं? अगर इसका क्वेश्चन अपन पूछे जाए, मेरे पास देखने के हिसाब से मुझे लगता है अपने पास समय कम रहेगा, डिस्कशन के हिसाब से अपन इसको बात करते हैं। तो देखते हैं कि मतलब ये जो पर्सन है, तो इंडिविजुअली अगर आप देखें कि मतलब इसमें क्या लग रहा है कि मतलब कि इफ यू आर हैविंग ए पर्टिकुलर लुक ऑन द पिक्चर ऑफ दिस चाइल्ड, देन व्हाट यू आर फीलिंग इन दैट केस, then we can say that the situation of this child is much more smaller or shorter as compared to the size of the dress of his father. वो अपनी इस ड्रेस को पहनना चाहता है, अपने पिता के समान बनना चाहता है और वो उस इंटायर ड्रेस के अंदर फिट आना चाहता है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में आने के लिए क्या लगेगा, वो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं कि सम टाइम डेफिनेटली विल बी रिक्वायर्ड, एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड टू गेट फिट इन द मार्केट। यहाँ पे वी कैन कंपेयर द ड्रेस ऑफ दिस particular child with the market and overall size of the child with the particular product what you are going to launch in the market. तो अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको क्या करना है, इस ड्रेस में फिट आने के लिए आपको समय की जरूरत पड़ेगी। यू आर इन नीड ऑफ पेशेंस इन योर ब्रेन, आपको थोड़ा पेशेंस से चलना पड़ेगा। वहां पे एग्जिस्टिंग कंपटीशन होगी, definitely you have to cut out the existing competition to make a deal with the customers, to make space in the crowded area of the brain and the heart of the customer for newly launched product in the market. आपको उसमें प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इतना सब जो है वो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मतलब समय लगाना पड़ेगा। आज बच्चे को बड़ा होने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारी एक्सरसाइज चाहिए। Some types of the medicines would be required at the time to be fit in that particular type of the attire to be fit. तो मार्केट को हम इस तरीके की ड्रेस मान लें कि एक बहुत बड़ा इस तरीके का एरिया है, और when you are going to launch a newly produced product in the market, then you have to keep patience in your brain, in your heart. For sometimes you have to give the much more time to make familiar your product to all of the customer who are residing, whether they are utilizing or not utilizing, still they should be aware whatever you are producing. सम ऑफ द कस्टमर, अपन ये कहेंगे कि जो लोग आपके प्रोड्यूसर ही नहीं है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन में हमने वर्ड पढ़ा है टारगेटेड कस्टमर, बट टारगेटेड कस्टमर इज नॉट ओनली द एरिया. Some of the people who are the part of the market definitely should be aware of your product, whether they are utilizing the product or not, but they should be aware
about the quality of your product, about the price of your product, about the place where it has been placed for the selling to the customer. It also should be aware by all the people whether they are your customer or not. अगर वो आपके कस्टमर नहीं भी हैं, if they are not also your customer, but they should be aware of your product, whatever you are going to launch in the market, then somebody who is asking for the consumption of such kind of the article, definitely this particular name should come on their tongue. Purchase this thing and your requirement will be fulfilled. Then again the question by the required people will be, some have you ever utilized this product? Then answer will be in no, because the particular person who is recommending for your product to utilize to the another customer is not habitual to use your product. उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी भी ये वाली चीज इस्तेमाल तो नहीं करी है, पर हाँ मैंने दूसरे लोगों से सुना बहुत है और यही अच्छा है, मेरे बहुत सारे लोग भी मैंने इन तरीके का यूज करते हुए देखा है. So you can utilize that particular kind of the thing. So this thing is important here. अगर आपने न्यूली लॉन्च किया है, आपको टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको बहुत सारे एफर्ट उसको पॉपुलर बनाने के लिए लगाने पड़ेंगे, जैसा कि बच्चे को करना पड़ेगा, तब ये ड्रेस के अंदर फिट आएगा. इफ यू आर हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, limited place where you have been organized, or the rental place you have been opted for the construction or the manufacturing of the product. Then we come to the another kind of the situation. Suppose some kind of the people who are having the additional amount of capital, additional measurement of the land, additional appointment of the people in kind of the HR, then they have been, then the situation will be just like that. The particular children who is trying to wear the green shirt and he is not being capable to wear it purely, completely, and अगर वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाएगा तो हम समझ सकते हैं कि इस शर्ट की हालत क्या करेगा थोड़े समय में. तो हम इस चीज को देख सकते हैं. If we are newly launching our product, then definitely we should control on ourselves to introduce the additional amount of capital. The n number of people who are not required should not be admitted in the organization, and the additional measurement of the land should not be utilized at all, because the additionally invested amount of capital will be used as the misuse of capital. पहले जो है capital एक resource अपना जो है वो स्केयर रिसोर्स से बड़ी मुश्किल से हाथ आता है. अगर बहुत सारी कैपिटल होती है तो भी बहुत जल्दी नष्ट होने की संभावना होती है. एंड रिपीटेडली इफ यू आर गोइंग टू अरेंज फ्रॉम द मार्केट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो डोंट ट्राई टू मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अदरवाइज द सिचुएशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर or the producer will be like this child, because the area from the area of the market you have been make additional effort, additional advertisement, additional marketing approaches you have been applied, and your product newly is going to be launched, which is not required such kind of the effort. So controlling on to the excess utilization of the capital, excess utilization of labor should be avoided when you are going to launch your product newly. After some times, when you are giving the sufficient time and when you are giving the sufficient efforts to make popular to your product, and you are now being capable to prepare and creating the particular space in the mind and the heart of the customer, then definitely after some time your personality, the personality of the product in the market will be some like this type of the person. Then you will be converted in this type of the man wearing and coming and in this type of the attire fit, isko hum keh sakte hain. That is, if you are getting your product in this situation, we can say now you can say that you are is fit for the market. हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वो कंडीशन है जिसमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरीके से अब मार्केट में कस्टमर को मिल गया है. That is a type of the situation where all the customers are getting
are in access to our product and there is no customer without product and our product is not being without customer. मतलब कि हमारा प्रोडक्ट फालतू में पड़ा हुआ बेकार नहीं हो रहा है. जो whatever we are producing is being consumed, is it being taken हाथों हाथ immediately is being taken by the कस्टमर्स इमीडिएटली. तो वो हमारा जो कस्टमर, हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो पूरा कस्टमर के हाथ में है और कोई भी हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से खाली नहीं है. Then in this situation we can say that our product is fit in the market, just like similar to this particular person who is wearing this particular dress. हम कह सकते हैं कि ये ड्रेस इसको लूज भी नहीं है, ये ड्रेस इसको बहुत टाइट भी नहीं है कि पहनते ही ये इसको फाड़ देगा, ऐसा भी नहीं लग रहा है जैसा ग्रीन शर्ट वाला बच्चा पहन रहा था. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूटिलाइजेशन है, प्रॉपर एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, scarce resource like capital and the land we have been utilized properly without making its wastage and misusing of the capital. तो हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से लेकर के फिर मार्केट के अंदर आ सकते हैं. Some of the example for the products who have which can be said the market fit are is that we are going to see here further. कि बुखार आ गया, उन्होंने कहा कि अभी सीजन चल रहा है, कोरोना का सीजन है, बारिश का सीजन भी है, बारिश में भीग गए, भीग भाग के आ रहे हैं, कुछ जो है गर्मी ज्यादा लग गई तो लोगों को कुछ ना कुछ ठंडा, कुछ तो भी बाहर जो बाहर ठंडा मिल रहा है, गन्ने का रस मिल रहा है, चरखी, तो वो लेकर के पी लिया है. फिर धूप में बहुत तप रहे हैं, धूप में तपने के बाद बर्फ के गोले वोले खा लिए. अब ऐसी कंडीशन में आपके गले खराब होना, थ्रोट इन्फेक्शन and feverish and आपको the body ache, headache and sometimes another type of the problems may be raised with light fever और थोड़ा ज्यादा फीवर, इस तरीके की चीजें, थोड़ा खांसी है तो गला खराब होगा. इस तरीके की सिचुएशन में अगर आप अपनी सिटी में हैं तब भी गांव के किसी पर्टिकुलर एरिया में, इफ यू आर गोइंग एट द रिमोट एरिया, रूरल एरिया, और वहां जाके किराना की दुकान पे जाते जाते तबीयत खराब है तो दुकान तक दवाई की जाने का समय और एनर्जी बॉडी में हमारे नहीं है, तो जाके किराना वाले से पूछ लिया. उन्होंने कहा कोई टेबलेट है बुखार की? उन्होंने कहा कि हाँ है. तो उन्होंने कहा कि कौन सी टेबलेट है? वो लेडी है, वो कोई केमिस्ट नहीं है, उसने जो है वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, उसको नाम भी नहीं पता है, बट शी इज अवेयर. अगर कोई बुखार की गोली मांगता है तो एक ब्लू कलर स्ट्रिप में जो नीली पत्ती में जो दवा पड़ी है, ये बुखार की दवा है, इससे हाथ पैर का दर्द भी बंद हो जाएगा, सिर का दर्द भी बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा. अगर गांव में जाकर के उस किराने वाली लेडी से अपन ने मांगा बुखार की कोई गोली वोली है क्या, उन्होंने कहा है नहीं. अंदर से आवाज लगाती है वो कि रमेश को आवाज लगाई सन को कि तारा दादाजी है नहीं, शाम के लाया था वो नीली पत्ती वाली दवा कहाँ रखी, बुखार की दवा चाहिए. अब उनको बुखार की दवा चाहिए, उसको पता है नीले क्रोसिन नाम नहीं पता है, लेकिन ये पता है नीले पत्ते की दवा बुखार की दवा है, केमिस्ट के बजाय किराना की दुकान पे भी मिल जाएगी. इट मीन्स दैट मे बी सेड एज द प्रोडक्ट मार्केट फिट. बुखार में भी चल जाएगी, हाथ पैर दुख रहे हैं तो चल जाएगी, पेट दुख रहा है तो भी ले लो चल जाएगी. मतलब इस तरीके की दवा है कि एक बार की चाहे जो भी हो रहा हो, एक टेबलेट लेने से थोड़ा आराम, डॉक्टर के पास जाने जितना आराम तो कर ही देगी. और अभी आज तक फिलहाल में एक आध गोली लेने से कोई इसके विशेष साइड इफेक्ट ऐसे कोई देखने में नहीं आए. कह सकते हैं क्रोसिन टेबलेट दे दो, उसी से कह दो कि जरा कालपोल है क्या दे दीजिए. कालपोल इज ऑल्सो यूटिलाइज फॉर सेम काइंड ऑफ द डिसीजेज हैविंग द सेम काइंड ऑफ द मेडिसिन पैरासिटामोल इनसाइड इट, but you can't get at the kirana store. So Crocin can be said as the product fit for the market. Each and every person, educated, non-educated, rural, urban, and at store, बहुत बड़े स्टोर मॉल में चले जाओ वहां मिल जाएगी, और गांव की किसी किराना दुकान पे भी मिल जाएगी. That can be said as the product fit for the मार्केट. हर एक के लिए, हर जगह, हर तरीके का, कोई नुकसान किसी तरीके का उससे होने वाला नहीं है. ज्यादातर कोई ऐसी इस तरीके की कोई चीज नहीं.
वहीं दूसरी तरफ दूसरा और प्रोडक्ट है विक्स वेपोरब के नाम से आपने सुना होगा, कोई भी हो रहा, बॉडी एक हो रहा, कुछ भी हो रहा, उन्होंने कहा झंडू बाम मिलेगा क्या? बट आप देख सकते हैं कि अगर मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट झंडू बाम, बट एट द रिमोट एरिया, एट द रूरल एरिया, इफ यू आर गोइंग एंड कॉलिंग फॉर द झंडू बाम, हो सकता है आपको ना भी मिले, बट इन दैट केस इफ यू आर कॉलिंग तो वो अपनी तरफ से बताएगा नहीं है विक्स, वो झंडू बाम नहीं है, विक्स की डब्बी है, चाहिए क्या? चाहिए क्या? रूरल एरिया है, लैंग्वेज ऐसी ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपको लैंग्वेज से क्या लेना देना? प्रोडक्ट इज अवेलेबल विद देम एंड इज अवेयर, प्रोड्यूसर इज अवेयर, सेलर इज अवेयर, the retailer is aware and consumer is aware, all are familiar with the consumption of the Vicks Vaporub. उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा है, बारिश में भीग गया, इसके तो पसली में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ दीजिए दर्द निवारक। इमीडिएटली विक्स की डब्बी ना जरा सा लगा के इसको थोड़ा सा सेक देना। वो डॉक्टर नहीं है लेकिन लेडी है, उसने घर में ये काम किया हुआ है। जब भी कोई सर्दी खांसी पीड़ित हुआ उसको फटाफट लगाया। छोटा बच्चा है लगा दीजिए, मिडिल एज का लगा दीजिए, किशोर है लगा दीजिए, young person, old person, each and every kind of person, every type of the person can utilize Vicks Vaporub, and definitely for after some time they will get some kind of the relax from the different types of the pains and the cold and cough etc. तो कई तरीके की प्रॉब्लम में इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा पैसे बहुत ज्यादा नहीं, आई ऑनली हैव 10 रुपीज। उन्होंने कहा बहुत छोटी डब्बी, इतनी बड़ी डब्बी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप जो 10 रुपए में भी एक छोटी सी डब्बी ये वाली ले जाइए, आपका काम अभी आपका हो जाएगा। We can say Vicks Vaporub is also a product just like the fit for the market, because each and every person is knowing about it, each and every kind of the person can get it। चाहे आपकी बहुत ज्यादा इनकम हो तब भी खरीद लीजिए, और बहुत कम इनकम हो तब भी खरीद लीजिए। विक्स वेपोरब आपके पास पड़ा हुआ है, आपकी इमेज को कहीं धक्का नहीं लगेगा कि अरे यार अपन तो इतने बड़े आदमी हैं और विक्स वेपोरब लगाते हुए दिख जाएंगे, तो बड़ी मार्केट में हमारी खिल्ली उड़ेगी कि अरे यार इतना बड़ा आदमी हो कि विक्स वेपोरब लगाता है। तो ये वाली चीज जो है इसके साथ में नहीं आएगी। डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो कैन बी सेड एज द fit for the market। It means actual definition of the product which is fit for the market is that the each and every customer, whether they are utilizing or not। एक एड अभी आपने देखा होगा, एक यंग पीपल है, वो कहीं बाहर दूर जगह पे रह रहा है और वो कफ कोल्ड से पीड़ित हो जाता, अपनी दादी को वीडियो कॉल लगाता, ग्रैंड मदर को। पीड़ित वो यंग पर्सन है, दादी पीड़ित नहीं है, दादी को कोई बीमारी अभी फिलहाल नहीं है, यंग बिल्कुल बढ़िया दिख रही है। अब ऐसी कंडीशन में आप देखो वो पूछता है दादी इसमें क्या डालना है, मतलब सर्दी के लिए क्या यूटिलाइज करना है। इमीडिएटली विदाउट गेटिंग एनी थॉट, एनी स्ट्रेन ऑन द ब्रेन, ऑन द स्किन ऑफ द फोरहेड, she takes one spoon, full spoon, 1 spoon of the Vicks Vaporub only for the evaporization। भाप के लिए क्या लेना चाहिए, तो ये चीज उन्होंने जो है फट से बता दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि झंडू बाम की भाप ले लेना, ले भी मत लेना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। छोटे बच्चे को अगर लगा दो तो उसकी स्किन के ऊपर रैशेस हो जाएंगे। मतलब वो जो है एक पर्टिकुलर किसी चीज विशेष के लिए काम में आएगा, वो हर एक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, हर जगह नहीं मिलेगा, उस तरीके की चीज में नहीं आएगा। आपको प्रोडक्ट फिट बनाना है, इट मीन्स यू हैव टू मेक अवेयर all kind of the people whether they are utilizing your product or not, but they should be aware of such kind of the product, whatever you are going to serve them in the market, then you will be capable to understand then what the actual thing is that। अगली बात अगर अपन देखें, उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरीके से कि कोई आ गया घर के अंदर आ गया, उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई यार, 1 घंटा हो गया यहाँ तो जो है वो लेक्चर लेते लेते और थोड़ी भूख लगी आई है, या वायवा लेते लेते बहुत लंबा टाइम हो गया, थोड़ा सा नाश्ता जो है वो करवा दो, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में इधर उधर के कटोरी समोसे फलाना ढिकाना गीली आइटम मिल रही हो जो बाजार में, अभी ना ही खाएं तो बेहतर है। लेकिन फिर भी जो है एक चीज है कि पार्ले जी इमीडिएटली कैन बी टेकन एज द सप्लीमेंट फूड। अभी तत्काल में आपको लेना है। उन्होंने कहा कि बिस्किट कोई पड़े क्या, आपके यहाँ बिस्किट पड़े हैं, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा घर हो, छोटा घर हो, बहुत बड़े लोग तरीके के लोग हों, हर एक के घर में पार्ले जी चल जाएगा। और जो भी पार्ले जी यूटिलाइज कर रहा है वो ये नहीं कहेगा कि बहुत गरीब लोग हैं,
बहुत अमीर लोग हैं या उन लोगों के लिए बना है। बिस्किट की फर्स्ट इमेज का मतलब होता है पार्ले जी। आज भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसी के लिए भी, अगर आप जाओगे अभी कहोगे कि अमिताभ बच्चन वाला और एक बच्ची वाला एड आ रहा है जिसमें वो कुर्र से बिस्किट की आवाज होती है, उसमें जो वो मैंगो क्रीम्ड बिस्किट है, अब वो उसको जाके गांव में मांगोगे अचानक, बल्कि सिटी में मैं कहता हूँ कि आप अचानक जाकर के मांगिए, इमीडिएटली यू विल नॉट बी केपेबल टू गेट इट फ्रॉम द मार्केट। सो इट इज न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, थोड़ा टाइम लगेगा और पता नहीं वो समय तक आने के पहले प्रोडक्ट मार्केट से बाहर भी हो जाएगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट की पहली कंडीशन होती है जो पहली स्लाइड में दिखाया था, टाइम, कंजम्पशन, पेशेंस इन द ब्रेन, कंटिन्यू लिविंग इन द मार्केट। मार्केट को नहीं छोड़ना है, मैदान नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू एफर्ट, ट्राई अगेन एंड अगेन के रूल को फॉलो करना है, देन यू विल बिकम फिट इन द मार्केट। तब आप अपने आप को मार्केट के अंदर फिट कर पाएंगे और तब आप जो है उसको सही तरीके से देख पाएंगे कि ये हकीकत में क्या है। जहां जाओ बिस्किट, उन्होंने कहा कि गांव में कुछ है क्या खाने के लिए, बहुत छोटी सी झोपड़ी है, बहुत दूर निकल गए हैं, शहर बहुत दूर है, भूख लगी है यार खाने के लिए, चाय बनाओ, चाय की होटल है। होटल क्या है, एक हट बनी हुई है रोड पे, एक झोपड़ी है, उसमें एक स्टोव रखा है पुराना वाला जिसमें हाथ से हवा भरता है, केरोसिन डाला हुआ है, मतलब कि यूटिलाइज, केरोसिन यूटिलाइज स्टोव ही यूटिलाइज। when we are calling for, we are telling about something to eat। पार्ले जी है साहब, चलेंगे क्या, चाय के साथ पार्ले जी लगा दूं? हाँ पार्ले जी लगा दो, वही सेफ मोड है, सब तरीके से ढका हुआ भी है, मुंदा हुआ भी है, पैक कंपनी की तरफ से पैक है और वहां अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये आप देखिए कि उसकी उस हट में भी पार्ले जी अवेलेबल है, कैन बी सेड इज फिट फॉर मार्केट। ऐसा लंबे समय तक करते रहने पर ही होता है। अगर आपने देखा होगा कि जब कोई नई कॉलोनी बनती है, नया रोड बनता है, नई सड़क बनती है, उसके बाद पर बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन चालू होता है, तो वहां बहुत सारे लोग इमीडिएट तत्काल प्रभाव से किराना दुकान खोल लेते हैं, कुछ रिचार्ज की दुकान खोल लेते हैं, कुछ स्टेशनरी की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें से कोई एक ही आदमी है जो कंटिन्यू लगा हुआ है, सुबह 7 बजे आ जाता है, रात के 10 बजे तक दुकान में ही मिलता है, जो चीज मांगो उसकी दुकान पे मिल जाती है। बाकी दूसरे लोग जो है वो 10 बजे आते हैं, 6-7 बजे चले जाते हैं, फिर दुकान खोलने के बाद किसी दूसरे की दुकान में जाके बैठ जाते हैं। कस्टमर आया, थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद में चला गया। टू मेक योर प्रोडक्ट फिट इन द मार्केट, कंटिन्यू शुड बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द कस्टमर, वेन एवर द कस्टमर यू शुड बी देयर। आपको विष्णु भगवान बनना पड़ेगा। बाली ने वरदान मांगा था, जब भी आंखें खोलूंगा मेरी आंखों के सामने दिखना चाहिए कस्टमर, उसी तरीके का बाली है। यू शुड बी विष्णु, भगवान विष्णु फॉर द कस्टमर। जहां आंख खोली कस्टमर ने, आप नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली आप उसके दिल और दिमाग में थोड़े समय बाद फिट हो जाएंगे। वो जहां जाएगा अपने आप ही को मांगेगा, आपको अपना प्रभु बना लेगा। जब वो आपको अपना प्रभु बना ले तो आप समझ जाइए कि योर प्रोडक्ट इज फिट इन द मार्केट। यू शुड बी द विष्णु for your customer and your customer will become the Lakshmi for you। तब वही कस्टमर आपके लिए लक्ष्मी बन जाएगा, आप उस कस्टमर के लिए विष्णु बन जाइए। आपको विष्णु बनना पड़ेगा। अब वो लोग जिन्होंने दुकान खोली है, 9-10 बजे दुकान खोल रहे हैं, फिर जाके दूसरे की दुकान में बैठ के गप्पा मार रहे हैं, वो कस्टमर थोड़ी देर वेट करेगा, फिर उस दुकानदार के यहाँ चला जाएगा जहां सब मिलता है। After some time they will analyze that only one of the shopkeeper or the marketer is in the market all the time whenever you are going। Suppose you are going 10:30 at night, then definitely at that time also the shop is open, and when you are calling for the product, any required item he is capable to provide you at all, then in this situation you can say your product is fit for the market now, because you are capable to supply at the demand of the customer anywhere at any time। किसी भी कंडीशन में आप जो है उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं, वो चेंज करा सकता है, जो भी करा सकता है। यू कैन
फुलफिल, यू आर केपेबल टू फुलफिल ऑल द डिजायर ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर जो है वो आपका भक्त है, उसने आपकी स्तुति की है, आपको उसने चाहा है, आपको उसने मांगा है। डेफिनेटली यू शुड बी कैपेबल टू फुलफिल ऑल द डिजायर। आपको उसको वरदान देना पड़ेगा प्रोडक्ट का, जब वो चाहे जिस समय पे। देन यू विल बिकम गेट लक्ष्मी इनसाइड फ्रॉम हिज पॉकेट टू योर पॉकेट। आप उसके विष्णु बन जाइए, वो आपका लक्ष्मी बन जाएगा, ये बात है। देन प्रोडक्ट विल बिकम द फिट फॉर द मार्केट। इन दैट केस वी कैन से so Parle-G also one of the product which can be said as the fit for the market। क्या फैक्टर लगे हुए हैं? पहली चीज है समय लगा हुआ है, पेशेंस लगा हुआ है, मेहनत लगी हुई है, दिमाग लगा हुआ है। कुछ भी नहीं है पार्ले-जी में, ना तो कोई विशेष एसेंस है, कोई खुशबू विशेष नहीं है, कोई टेस्ट विशेष नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। लेकिन फिर भी जो है एट ए टाइम एट ए ग्लांस अगर बिस्किट है तो पार्ले-जी नाम पहले ध्यान आएगा, वही वाली चीज है। बिस्किट का दूसरा जो टाइप है, अगर शुगर फ्री की बात करें तो ब्रिटानिया मैरीगोल्ड लोगों की पहली चॉइस। बच्चों के केस में अगर आप देख लो, उन्होंने कहा जन्मदिन मनाना है, जो भी करना है, कोई चॉकलेट ले आना इमीडिएट, कोई से भी। डेयरी मिल्क के बहुत सारे बार उन्होंने कहा कि कोई भी काम, चाहे जिसके लिए भी, बच्चों का बर्थडे है तो भी डेयरी मिल्क चल जाएगी, यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी चल जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़ा मीठा हो जाए, कोई भी शुभ काम करने के पहले थोड़ा मीठा हो जाए। उन्होंने कहा कि एड आया करता था, उसका डेयरी मिल्क का ही था। वो एड आता था, उसमें एक लड़की एक जगह पे बैठी है, एक लड़का उसको प्रपोज करने के लिए जाता है और उससे एक पीस मांगता है कि मतलब मुझे थोड़ा सा एक पीस, एक बाइट देंगी आप, डेयरी मिल्क का एक बाइट दे दीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों, मैं आपको जानती नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि एक बाइट दे दीजिए, क्या दिक्कत। वो बाइट उसने उसको दिया, वो बाइट उसने खा लिया और प्रपोज किया। उन्होंने कहा बाइट क्यों मांगा था? उन्होंने कहा कि मेरी माँ ये कहती है कि कोई भी शुभ काम करने के पहले मीठा खाना चाहिए। ने आप देखिए कि प्रोडक्ट मार्केट फिट करने के लिए समय चाहिए, समय के साथ लोगों की वो भावना, वो वैल्यू है, उसकी वैल्यू करना जरूरी होता है। आपने देखा होगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो दही शक्कर खा के जा रहे हैं, कहीं कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तब भी मीठा खा के जा रहे हैं। उस चीज को केस कराया है कि मतलब जब भी कहीं कोई मीठा अचानक नहीं मिले तो डेयरी मिल्क पास में पड़ी हुई फटाक से तोड़ के खा लेना। तो डेयरी मिल्क उसके लिए रखना तो पड़ेगी जेब में, पास में अपने आप पास रखनी पड़ेगी। तो वो जो चीज है उसके लिए अपने को उसको उस तरीके से मार्केटिंग करना पड़ेगा, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कस्टमर की वैल्यू करना पड़ेगी। कस्टमर जिस चीज की वैल्यू कर रहा है उसकी वैल्यू आप करिए, वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू करने लगेगा और आपकी वैल्यू मार्केट में होने लगेगी और प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी जेब में गिरने लगेगी। ये वाला काम आपके साथ में हो जाएगा। इसके और भी एग्जांपल आपने देखा होगा, कुछ मीठा हो जाए की कैटेगरी में इंडिया में ये चीज है कि जब भी आपने खाना खा लिया, उन्होंने कहा कि भोजन हो गया, अब इसके बाद में थोड़ा मीठा चाहिए, कुछ ले आओ मीठा, गुड़ी ले आओ, शक्कर ले आओ, कुछ पेड़ा आड़ा ले आओ, लड्डू ले आओ। अब ये सब चीजें उन्होंने कहा कि जो इतना सारा परेशानी फसाद करने की कोई जरूरत नहीं है, डेयरी मिल्क रखिए, पूरा परिवार निपट लेगा। दो दो तीन तीन पीस उसके लीजिए, शक्कर भी आपको कम जाएगी और चॉकलेट जो है वो आपके बीपी लेवल को नॉर्मल रखने में भी काम आती है। अचानक बीपी डाउन होने लग गया, कुछ होने लग गया, दवाएं नहीं है, एक चॉकलेट लीजिए, खा लीजिए, तो वहां भी आपको फायदा करेगा। आपके ब्रेन को भी जो है थोड़ा सा वो करने के लिए काम में आता है। तो वो सारे एलिमेंट उन्होंने मिला करके जो एक आदमी की वैल्यूज होती हैं, कस्टमर वैल्यूज जो होती हैं, उनकी वैल्यूज जब आप करते हो तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाकर के फिट हो जाता है, लाइक 5 स्टार, लाइक डेयरी मिल्क। व्हीकल्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्कूटर खड़ा है बजाज का, चालू ही नहीं होता था, चालू करना है तो झुकाना पड़ेगा। लोग बोलते थे, कहावत थी इनके बारे में, बजाज के घोड़े बिना झुकाए चालू नहीं होंगे। एक पुराना मेरे पास भी था, उसको उसी तरीके से जो है चलाना पड़ता था। अगर 2 घंटे हो गए, झुकाओ चलाओ। बट अगर स्कूटर लेना है, स्कूटर की मांग अगर आज के दिमाग में, आज के नए सिनेरियो में अगर आप किसी से पूछो स्कूटर, ये बजाज चेतक, लोग बहुत सारे लोगों ने अपनी नई गाड़ियां निकाल के उसका नाम स्कूटर रखा है, पर लोग उसको स्कूटर नहीं मानते हैं, वो उसको एक तरीके की लेडी गाड़ी मानते हैं। स्कूटर गियर वाली आइटम थी, क्या काम आता था? कुछ भी तो काम आता था, किराना
दुकान है, किराना भर लीजिए, बीच में भर लीजिए और दोनों तरफ टांग लीजिए, भयानक तरीके से चलते जाइए, चलता रहेगा। उसके सारे पुर्जे टूट गए हैं लेकिन फिर भी आवाज करता रहेगा, लेकिन चलता जरूर रहेगा, बीच में नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। और उसके बाद अगर उसको बेचना है तो रीसेल बहुत बढ़िया मिलती थी ऐसी कंडीशन में। दहेज देना है तो रिस्पेक्टेड जो है वो चीज दिखती थी। स्कूटर दे दो तो स्कूटर दे दिया ना, बहुत बड़ी आपकी इज्जत कर दी, मैं बिल्कुल आपका काम कर दिया। पेट्रोल के दाम बढ़ जाने के कारण बहुत मजबूरी में बजाज ने अपने स्कूटर का उत्पादन बंद किया था, और वो बहुत तकलीफ उन्होंने बताई थी उस बारे में, जो है कि मतलब इसको बंद करने में बहुत तकलीफ है। तो इसका जो प्रोडक्शन है उसी तरीके था। अगर मान लीजिए आज की तारीख में कोई लेडी स्कूटर की बात की जाए तो आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है बिल्कुल बढ़िया सी, और उसको देखते से मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसको पहचाना नहीं होगा कि मतलब टू व्हीलर गाड़ी है। नाम जाओ मैडम, अगर आपको गाड़ी लेना हो तो कौन सी गाड़ी अभी आप एकदम प्रेफर करोगी? मेरे ख्याल से एक्टिवा। तो हाँ भाई, मैडम बैठी उनसे मैंने पूछा है, उधर से एक्टिवा का इशारा किया उन्होंने। तो एक्टिवा जो है वो यहाँ पे खड़ी, आप देख लीजिए। अगर टू व्हीलर की बात करो तो उन्होंने कहा एक्टिवा लेना, अगर लेडीज है उससे आप पूछोगे, उसके हाथ पांव में जान हो चाहे नहीं हो, चलाते ढंग से आ रहा हो नहीं आ रहा हो, चाहिए तो एक्टिवा, फिर बाद में देखा जाएगा कि पैसे कम है, ये है वो है, तो जाएंगे स्कूटी पे और कोई दूसरा है, ड्यूरो है, जो भी है, कोई दूसरा हीरो की दूसरी बाइक होगी, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बट पहली जो प्रेफरेंस है वो उन्होंने कहा एक्टिवा। एक्टिवा क्यों चाहिए? कोई लेडी गाड़ी नहीं है, दादा है वो भी चला सकते हैं, उनको ज्यादा गियर वेयर बदलने का झंझट नहीं, भूल जाते हैं क्लच का है ब्रेक का है, वह डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है, और गियर वेयर नहीं बदल पाते। एक्टिवा ले जाओ तो लगता नहीं है कि आप, तो अगर आपने लेडी घड़ी पहन ली तो दिक्कत है कि मत पहन के जाओ, वो लेडीज घड़ी है। लेकिन लेडीज बाइक एक्टिवा उठा के ले जाओगे तो दुनिया में कोई भी आपको ये बोलने वाला नहीं है कि क्या यार लेडी बाइक पे आप घूमते हो, एक्टिवा पे घूम रहा है मतलब शान है। अगर आप बाइक चला रहे हो गियर वाली और उसके पास से अपनी एक्टिवा निकालो तो आपकी इज्जत ज्यादा हो कि आपने जो है एक्टिवा ज्यादा जो है वो हेवी मॉडल आपने खरीदा है और वो आप चला रहे हो। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट, मतलब कि ईच एंड मतलब कि हर जगह सम्मानित हो रहा हो, हर जगह हर कोई व्यक्ति उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। दो घड़ियां खरीद लाइए, दो अंगूठियां खरीद लाओ सोने की, बहुत बढ़िया। लेकिन जो जेंट्स से घर में उसको कहोगे इसको पहन के निकल जाओ, आपका हाथ बड़ा सूना लग रहा है, अरे कुछ नहीं है तो यही है, सोना तो है ही ना, क्या दिक्कत है, लेडी है तो क्या हो गया, पहनते क्यों नहीं? वो नहीं पहनेगा, वो खाली हाथ चला जाएगा, लोहे की पहनेगा। बट ही विल नॉट एक्सेप्ट टू वियर द लेडी रिंग मेड ऑफ गोल्ड। सोने की बनी हुई अंगूठी भी लेडी पहन के जाने को तैयार नहीं है, लेकिन लेडी गाड़ी एक्टिवा ले जाने को तैयार है और बड़े शौक से ले जा रहा है। अपनी बाइक ले जानी बंद कर दी है क्योंकि बड़ा आराम है, बैठने में आराम, थोड़ी सीट बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया आनंद, और गियर बदलना ही नहीं है, बढ़िया पिकअप, बढ़िया लुक, बढ़िया इज्जत, सब कुछ जब मिल रहा है तो क्यों ना एक्टिवा चलाए। तो एक्टिवा लेडी जेंट्स सब कोई, और चाहे जहां चलाओ चाहे जैसी चलाओ, एवरेज भी लगभग ठीक ही मार्केट के अंदर भी मिल जाए। और सब तरफ से सुधारने के लिए भी जो मैकेनिक है उनको आती है सुधारते। टीवीएस के बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं मैकेनिक सुधारने से मना कर देते हैं, तो टीवीएस बजाज ये रास्ते का कोई भी मैकेनिक खोल के, और मैकेनिक नहीं मिला तो खुद ही खोल लो, दो पाने आते थे उनसे खोलो, थोड़ा ठोको, कुछ नहीं तो पत्थर से ही ठोको, चालू हो जाएगा। मतलब कि बजाज की ऐसी खासियत थी स्कूटर की, बंद नहीं होता था जनरली, धोखा कभी इन गाड़ियों ने नहीं दिया। और वही चीज है कि लोगों के दिलो दिमाग पे आज भी इनका वो अक्स हुआ असर बना हुआ है। अगली बात, एक और चीज दिखाई दे रही थी बाइक के रूप में देखा जाए तो हीरो होंडा, आपको बताइए चाहे जहां पार्ट मिल जाएंगे बहुत सस्ते पार्ट मिलते हैं, शाइन इससे अच्छी गाड़ी दिखती है, शाइन अगर खरीदोगे और हीरो होंडा से ज्यादा अच्छी दिखेगी, होंडा हीरो से, हीरो की गाड़ियों से शाइन जो है, शाइन होंडा की गाड़ी है वो ज्यादा अच्छी है, पिकअप भी थोड़ा सा ज्यादा है, लुक भी अच्छा है, बट स्टिल पीपल प्रेफर फॉर द गो फॉर द हीरो व्हीकल। वो हीरो HLF डीलक्स बहुत खरीदते हैं, पेशन बहुत खरीदते हैं, पेशन प्रो बहुत खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? स्पेयर पार्ट्स जो शाइन का आएगा वो 150 रुपए का आएगा, इसका 20 रुपए का आएगा, कितना जमीन आसमान का अंतर। शाइन का किसी भी स्टोर पे नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा यहाँ नहीं मिलेगा, शाइन का है, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ है, उन्होंने कहा नहीं। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए साहब आपको इसके शोरूम ही जाना पड़ेगा, वहीं मिलेगा। होंडा का तो कोई वो जो मैकेनिक बैठा है उसके डब्बे में जो लकड़ी की पेटी बना रखी है उसमें भी पड़ा हुआ है, वहां मिल जाए। ये तार डालना है यार, शाइन का तार डालना टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, होंडा का मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है।
हीरो का मैकेनिज्म ऐसा है कि अपन ही अगर वो लड़का डाल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपन ही डाल लेंगे देखते देखते उसको कि ये कहाँ से निकाला था, वहीं डाले चले जाओ, अपने आप फिट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट, जब प्रोडक्ट अपने आप मार्केट में फिट हो जाए तो समझ जाओ फिट हो गया मार्केट में। अगली चीज अपन देखें मोबाइल के बारे में, अपन ने देखा नोकिया ने मोबाइल के क्षेत्र में राज्य किया है इंडिया पे। एक बात थी, मोबाइल लेना है तो नोकिया का मोबाइल लेना है। क्यों लेना है? इसके बटन दिख रहे होंगे आपको कितने ईजी है। एक नोकिया 3310 जो मोबाइल का सेटअप बना हुआ है, जरा उसको देखिए। उसमें एक लाल बटन है, एक हरा बटन है, और बीच में एक बटन है जो मेन्यू अगर चलाना आता हो तो चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। लाल हरे बटन दबाओ, काम खत्म। और आपके जो बटन है 1 2 3 4 दिख रहे हैं, गादीदार बटन है, इनसे मोबाइल लग जाएगा। कुछ नहीं, वो लाल बटन दबाना, कट जाएगा। कोई डिफिकल्ट चलाना उसको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी बैकअप 24 घंटे का होता था, और प्राइस रीजनेबल। और उसके बाद अगर बेचना हो तो मार्केट में सबसे अच्छी सेल मार्केट में होती थी नोकिया मोबाइल की। वो तो चाइना मोबाइल आ गया, और चाइना में प्राइसेस के टक्कर में जो है नोकिया को हटाया। लोगों ने नोकिया प्राइस के कारण छोड़ा है, क्वालिटी के कारण नहीं छोड़ा है। क्वालिटी आज भी नोकिया की चाइना मोबाइल से बेहतर आती है, लेकिन चाइना मोबाइल बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए लोगों ने इसको अपने उससे हटाया। अदरवाइज आज भी नोकिया जो है वो मोबाइल की फील्ड में तो कम से कम राज कर ही रहा होता। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बारे में आपको पता है, पहले जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जब शुरू हुई थी तो आपको इनकमिंग पे भी पैसे लगते थे, इनकमिंग के पैसे भी देना पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जो इनकमिंग फ्री हुआ, फिर लाइफ टाइम फ्री हुआ, और टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में बीएसएनएल, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां आती चली गई। प्रोडक्ट मार्केट फिट की कैटेगरी में भी आ गई, सब आ गई। बीएसएनएल भी आ गया, आइडिया भी आ गया, एयरटेल भी आ गया, वोडाफोन भी आ गया। इक्वल प्रोपोर्शन में मार्केट में चलते हैं। मतलब अगर गांव का रूरल एरिया की बात कर लो तो एयरटेल, और अगर सिटी की बात कर लो तो आइडिया। लोग आज भी बिना पूछे लोग बता देते हैं, ये लोग बता देते हैं, लोग बोलते हैं ये वाली चीजें। तो इस तरीके से जो है वो इक्वल मार्केट प्रोपोर्शन में लोगों ने काम करना चालू करा। नया नाम अपन ने इसमें यहाँ नया दिख रहा है जो बड़े उसमें डाल के रखा है, जियो। मार्केट में अचानक आया और इतनी सारी पूरी चलती कंपटीशन को हवा लगा दी उन्होंने कहा कि पीपल चाहता क्या है। उन्होंने कहा लोग डेटा के लिए बहुत परेशान है, लोगों को बिल्कुल कम से कम डेटा मिल रहा है। बीएसएनएल, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन पैसे बहुत ले रहे हैं, लेकिन डेटा का फ्लो अच्छा नहीं है, डेटा से लोग सेटिस्फाई नहीं है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, और बहुत महंगे डेटा पैक वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसने एक चीज डाली बिल्कुल सही तरीके से, उसने जो है आपको मार्केट में एंट्री करी और झाड़ू लगा दी एकदम से। आपने देखा उन्होंने इंडियन पीपल, उन्होंने कहा कि इंडियन पीपल कितनी पॉपुलेशन, 1.25 अरब की पॉपुलेशन। फैमिली स्ट्रक्चर, उन्होंने कहा कि कम से कम 5 लोग एक फैमिली में, तो जो 1.25 अरब है 5 से डिवाइड करा तो 25 करोड़ फैमिली, जब 25 करोड़ फैमिली है। कम से कम एक मोबाइल एक फैमिली में, मान लो ज्यादा मत मानो तो 25 करोड़ लोगों को एक काम करते, अगर अपन ने नेट बेच दिया तो बहुत हो जाएगा। अपन एक काम करते हैं, 6 महीने नेट फ्री दे दिया, कैपिटल सफिशिएंट था, फंड सफिशिएंट थे, दे यूटिलाइज फॉर दिस, नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर 6 मंथ्स, ऑल इज फ्री। कॉल लगाओ, कॉल सुनो, दिन भर 24 घंटे बात करो, और 24 घंटे नेट यूज करो, 4G खूब डाउनलोड करो, नो पैसा। एक सिम ले लो बस। अब कौन ऐसा परिवार होगा जिसे जो इस तरीके की फैसिलिटी नहीं लेगा। भयंकर नेट के प्यासे लोग, हर एक परिवार ने अपने सारी चलती हुई सिमों के साथ along with all the existing sims mobile connections they purchased at least 1 Jio। उन्होंने कम से कम एक जियो की सिम खरीदी, कम से कम एक जियो लिया उन्होंने, कम से कम एक जियो उन्होंने ले लिया, और फिर मार्केट में आपने देखा झाड़ू लगा दी। आइडिया, वोडाफोन इनके सर्वाइवल के लाले पड़ गए। आपने देखा आइडिया और वोडाफोन को मिला के वी बना। वी एक वो चौं करके आवाज आती है उनके हेड में, अलग से पकड़ में आता है कि वी का हेड। तो अभी नया जो है वो दोनों का मर्जर हुआ, दोनों ने मर्ज करके चलाना चालू किया कि कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और हम लोग अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके थोड़ा मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। वी विल बी कैपेबल टू सरवाइव इन द मार्केट।
हाउ टू फिट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, जितनी बातें हमने करी हैं वही यहाँ पे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को, अपने मार्केट को पहले पहचानिए। दूसरी बात है कि आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर को पहचानिए, कौन कौन आपके कस्टमर होंगे। आपको केवल अपने कस्टमर को नहीं पहचानना है, आपको उन लोगों को भी जोड़ना है, द पर्सन हु आर नॉट योर कस्टमर, बिकॉज दे विल बी यूटिलाइज्ड जस्ट लाइक द एडवर्टाइजमेंट मीडिया फॉर योर प्रोडक्ट, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। कई बार हम लोग खुद भी किसी चीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं। अचानक अगर कोई व्यक्ति किसी इस तरीके के प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने की बात करता है तो हम इमीडिएटली वो नाम लेते हैं और उस नाम से उसका जो है वो काम हो जाता है। वो पूछता भी है आपने यूटिलाइज किया है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं हमने कभी यूटिलाइज नहीं किया। तो जो पर्सन आपका आपका प्रोडक्ट यूटिलाइज नहीं करता, उसको भी अपने साथ जोड़िए, उसको भी अपने से मिलने वाले फायदे दीजिए। द पर्सन विल बिकम द एडवर्टाइजमेंट चैनल फॉर यू। यूज इकोनॉमिक वे फॉर द मेकिंग पॉपुलर योर प्रोडक्ट। आप एकदम से बहुत ज्यादा अपनी कैपिटल को खर्च करके अपने प्रोडक्ट को मत बनाइए। टाइम स्पेंड कीजिए, लेबर स्पेंड कीजिए, अपने कस्टमर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, आप अपने कस्टमर के साथ ज्यादा से ज्यादा रहिए, आप उसकी वैल्यू कीजिए, वो आपका भक्त बनेगा, आप उसके विष्णु बनिए, वो आपकी लक्ष्मी बनेगा। ये सारी चीजें आपके साथ में जुड़ जाएंगी। वर्क फॉर द कंज्यूमर डिलाइटेडनेस, कभी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम मत करिए, कस्टमर के डिलाइटेडनेस के लिए काम कीजिए। आप कस्टमर को खुश करिए, कस्टमर आपको खुश कर देगा। लेडी प्रोडक्ट के बारे में, लेडी ओरिएंटेड प्रोडक्ट के बारे में बात बहुत ज्यादा लागू होती है, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या साड़ी हो। आपने इन जगहों पे जाके देखा होगा, मेरे को कई जगहों पे मैंने इन चीजों को अनुभव किया। रिसेंटली एक जगह पे अनुभव किया कि एक जगह पे मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कॉस्मेटिक आइटम कुछ खरीदने के लिए जहां मैं गया हुआ हूँ, उस जगह देख रहा हूँ वहां दो लड़कियां खड़ी हैं और उनको लिपस्टिक खरीदनी है, और लिपस्टिक उन्होंने कितनी निकाल ली, 500 रुपीज कॉस्टिंग, 300 रुपीज कॉस्टिंग, और इस तरीके के महंगे महंगे प्रोडक्ट उन्होंने निकाले। अब उसके बाद में वो हाथ में लगा लगा के सैंपल पूरा हाथ कोहनी से लगा के उसकी कलाई तक पूरा निशान बना दिए, मैडम ये वाली, मैडम ये वाली। अब वो एक विशेष तरीके का ऑरेंज शेड चाह रही थी जो उसकी दुकान में नहीं था, या तो शेड उसकी दुकान में थोड़ा येलोविश था, या थोड़ा सा जो है वो पिंक कलर के शेड थे, या रेड कलर के शेड थे, वो नहीं बन पा रहा था। उसके हाथ पे उस चीज को देख के मेरे को ये विचार मेरे मन में आया, जो येलोविश और पिंक है अगर इसको मिक्स किया जाए तो ऑरेंज कलर बनेगा। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा एक काम, मैंने कहा टोका उनको मैंने बीच में, मैंने कहा थोड़ा सा अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो उसमें कि अगर ये वाला और ये वाला अगर मिक्स करके लगाओ तो देखो ये वाला कलर आपका बनेगा। उनने दिखाया, उन्होंने कहा देखो एक बार ट्राई करते हैं, और वो कलर जो उनको डिजायर्ड कलर था वो डिजायर्ड कलर आ गया, और उन्होंने 2 लिपस्टिक परचेस करी मार्केट से, जिसके लिए इतना घंटा भर से वो परेशान हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ, लेडी आर्टिकल्स में उनको सेटिस्फाई करना, डिलाइटेड करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, और वो चीज आपको उनके दिमाग को पकड़ के मिलती है। उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और वो जो चीज थी उन्होंने परचेस कर ली, दोनों परचेस किए। उन्होंने कहा दोनों मिला के मिक्स करोगे तभी आपका डिजायर्ड कलर आएगा, ये वाला कलर मार्केट में अचानक नहीं मिलेगा, आपको चाहिए तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये वाली चीजें हैं। अभी साड़ी वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, आगे मिलेगा। प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट, वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए, कस्टमर आता है, अलग अलग तरीके के कस्टमर होते हैं, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, हर एक तरीके के कस्टमर के लिए चीज होनी चाहिए। किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है, किसी को ज्यादा मात्रा में चाहिए, किसी को कम मात्रा में चाहिए, कोई भी खाली नहीं जाएगा। जो आएगा उसको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, दे विल गेट समथिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो कोई भी आदमी खाली नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ देके जाएगा। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, उसके अंदर तो बहुत पॉपुलर है, गोबर गिरेगा तो कुछ लेके उठे। मतलब आपको उसके साथ में बहुत पेशेंस रखनी होगी,
आपको विनम्र बनना होगा, कई बार उसकी डांट भी खानी होगी, कई बार वो गरम गरम बोल जाएगा, तब भी आपको नरम नरम ही देना है, ये ध्यान रखना। बेसिकली द मार्केट, product market fit is the phenomenon internal related with the internal environment of the business. Internal environment of the business means it can be handled by the management, management of the internal organization. आप अपने प्रोडक्ट को देखते रहिए और करना क्या है, ये करना है चेंज योर प्रोडक्ट व्हाट द मार्केट इज लुकिंग फॉर। मार्केट जिस तरीके की चीजें चाह रहा है उसको वो चीजें दे दो यार, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो, उसका मुंह बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है फैमिली मेंबर्स एंड हाउसवाइफ। अनुपमा सीरियल अपन देखते होंगे, लेडीज तो डेफिनेटली देखती ही होंगी। अनुपमा बहुत सुंदर लेडी नहीं है लेकिन एक हाउसवाइफ है, और आपने देखा है उसके परिवार में हर तरीके के लोग हैं। एक माँ है जो हमेशा गरम गरम कुछ तो बोला करती, एक समझदार ससुर है, 2 बच्चे हैं उसमें, एक उसको लाइक करता है, एक अपने पिता को लाइक करता है, एक लड़की है वो भी थोड़ी नक्चढ़ी सी है, इमीडिएट मानती नहीं है, और जो उसका हस्बैंड है उसके बारे में सबको पता है भी। तो वो जो चीजें हैं उन सब चीजों को हैंडल करके पूरा परिवार सेटिस्फाई बना रखा है, बल्कि डिलाइटेडनेस कर रखा है। वी ने जो अपनी इच्छित व्यक्ति था, दूसरी जगह वो चला भी गया है, तब भी पुराने प्रोडक्ट अनुपमा को नहीं भूल पा रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट, दैट इज द एक्यूरेट एंड करेक्ट एग्जांपल फॉर द फिट ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर कोई व्यक्ति दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे तो भी आपके प्रोडक्ट को भूल नहीं पाए और ये सोचे ये कब जल्दी से खत्म होगा और मैं वापस अपना पुराना वाला प्रोडक्ट ला पाऊंगा। अगली जो चीज है वो ये है, ये साड़ी वाला जो एग्जांपल है मैंने दिखाया कि साड़ी खाली दिखा देने से कि यहाँ रखी है देख लो, कोई सी पसंद है ले जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेडी आर्टिकल बेचने में जान निकल जाती है। देखो इसमें एक व्यक्ति है वो लेडी को साड़ी पहना के बता रहा है कि लो मैं पहना के बता देता हूँ आपको। कई बार तो वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए साड़ी खुद ही पहन लेता है। देखो मेरे ऊपर इस साड़ी को देखो कितनी अच्छी लग रही है, मेरे जैसे पे अच्छी लग रही, तो बेंजी आप पे तो लगेगी सही। जब वो आई है उसके साथ में बच्चा लाई है, बच्चा पानी ढोलेगा, ढोलने दो, चिल्लाना मत उसको। जिस दिन बच्चे को चिल्ला दिया ये बर्दाश्त नहीं होगा उसको, और वो आपकी दुकान में अब कभी भी नहीं आएगी। दूसरी बात, रेशो मैंने पूछा है साड़ी वालों से, क्या करते हो, किस तरीके से दिखाते हो? बोले 25 पे 1 का रेशो है, 30 पे 1 का रेशो है। अगर एक साड़ी आपको बेचना है 30 से 35 साड़ी आगे पटकना पड़ेगी। उसमें भी एक पसंद आ गई तो बहुत है, नहीं तो जो है वो और निकलाएंगे और उसके बाद भी चले जाएंगे। तब भी उनको ये बोलना पड़ता है बेन जी और आना, अगली बार आपकी पसंद का प्रोडक्ट जरूर ला पाएंगे, क्षमा चाहते हैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाए, ये वाली बात बोलेंगे। तो ये वाली चीज जब होती तब आप उनके दिलो दिमाग पे छा जाते हो। ये काम आपको तब करना होगा। अगली चीज, वंस मेक चेन और द गार्लैंड ऑफ योर कस्टमर, वंस पियर्स्ड इन अ स्ट्रिंग दे परमानेंटली विल बी एडेड इन द लेंथ एंड द गार्लैंड विल इंक्रीज डे बाय डे। आपकी जो माला है वो दिनों दिन लंबी होती जाएगी। नींबू है मान लीजिए बहुत सारे, अगर बिल्कुल ऐसे ही स्पेयर्ड हैं और सेपरेटली इधर उधर यहाँ वहां लुढ़क रहे हैं तो कस्टमर जो है वो नींबू की तरह होता है, खाली ढोल दो तो कहाँ जाके घुसेगा, किधर कोने में घुस जाएगा मालूम नहीं है। लेकिन जैसे नींबू पकड़ में आया, आप अपने पास में सुई धागा रखिए, प्रेम का धागा रखिए और उस धागे के अंदर उसको पिरो लीजिए। अब ये कहीं नहीं जा पाएगा, जैसे एक माला में गुदा हुआ नींबू कहीं नहीं जा पाता, ठीक उसी तरीके से कस्टमर को अपनी माला में परमानेंटली पिरो लीजिए। आगे गठान लगा के रखना सिरे पे, नहीं तो इधर से नींबू आते जाएंगे, पीछे से नींबू खसकते जाएंगे और माला वहां की वहीं बनी रहेगी, लंबी नहीं होगी। लंबी माला करना है तो धीरे धीरे धागा लंबा करना और गठान जो है वो बराबर लगाते रहना ताकि कस्टमर इधर उधर भटकने
ना पाए तो अपनी माला जो है कस्टमर की बनाते चलिए, कस्टमर की चेन बनाइए और लंबी चेन बना लीजिए, और धीरे धीरे ये चेन जो है वो आपका एडवर्टाइजमेंट करने लगेगी और आपके प्रोडक्ट को और ज्यादा आगे ले जाएगी, और ज्यादा प्रोडक्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी। आपने आध्यात्मिक दर्शन के बारे में सुना होगा, नजर बदली नजारा बदल गया, एक चीज होती है आध्यात्मिक दर्शन है। पहले एक व्यक्ति है, वो संसार में बहुत ज्यादा खोया हुआ है, उन्होंने कहा कि एक लड़की है, उसकी तरफ देखता है, उसकी नजरें गलत है, उन्होंने कहा खूबसूरत व्यक्ति है, हर एक का ध्यान जाता है, खूबसूरती भी क्या बुरी शय है गालिब, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली, ये वाला मामला। अब लेकिन धीरे से उसको नारद मुनि जैसे कोई संत मिले, कोई मंत्र बता गए, कहा इसको जब थोड़े समय बाद वापिस आया तो उसी लेडी को बोलता है माता के बराबर है, ये तो दुर्गा है, ये तो लक्ष्मी है, सरस्वती है, वही लेडी है, वही आदमी है, वही इन्वायरमेंट है। पहले की नजर अलग थी, अब की नजर अलग है, नजर बदली नजारा बदल गया। ऐसा अध्यात्म में होता है, ये आध्यात्मिक दर्शन है। लेकिन मार्केटिंग दर्शन कुछ और है। मार्केटिंग दर्शन कौन सा है? फॉर मार्केटर और फॉर प्रोड्यूसर व्हाट इट इज दैट नजर बदली नजारा बदल दिया। इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन द मार्केट, टू फिट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, then you have to apply this type of the darshan in the market. nazar badli nazara badal diya. The first part of the sentence nazar badli is from the side of the customer, and the second part of the sentence nazara badal diya from the side of the producer, from the side of the manufacturer. जैसे कस्टमर का मन उबा 2G से 3G लॉन्च, 3G बाहर आ गया, फिर 3G में नेट चला रहा, परेशान हो रहा है, वो सर्फिंग हो रही है, गोला घूम रहा, चक्री घूम रही, चीज जो चाहिए डाउनलोड नहीं हो रही है, परेशान हो रहा है। 4G फेंको, नजर बदली उसकी, हमने उसकी नजर बदली, देखी हमने नजारा बदल दिया। 4G से अब परेशान होने आ गए लोग, उन्होंने कहा 5G लॉन्च कर दो, 5G लगा दो, तो 5G मोबाइल सेट, उनसे भी पैसे आएंगे, 5G कनेक्शन से भी पैसे आएंगे। darshan for the market is that nazar badli from the customer side, from the producer side, there should be नजारा बदल दिया। एक छोटे बच्चे को एक चीज बहुत अच्छी आती, वो घर में बैठा है, उसके पिताजी के सामने खेल रहा है, वो मस्ती करता रहता है, उसके पिताजी के चेहरे की तरफ देखता है, उसके फादर उसको देख के हंस रहे हैं, मस्ती, उसको खुश हो रहे हैं। जब वो देख लेता पिताजी खुश हो रहे हैं तो ज्यादा मस्ती करना शुरू करता है। उन्होंने कहा कि फादर इज इन नीड ऑफ सच काइंड ऑफ द एक्शन मेड बाय मी, देन मोर अटेंशन ही विल पे ऑन टू। फिर पिताजी धीरे धीरे अपना कोई काम करने के लिए जाते हैं और बच्चे की अब उधम से चिढ़ होने लगी है, उनने अपनी आंखें तरेरी और बच्चे को बड़ी आंख करके देखा। बच्चा बिना कुछ बोले चाले अपनी सारी चीजों को समेट लेता है। जैसे ही आप नजर बदल रहे हो, वो नजारा बदल रहा है, मतलब जो बच्चे के अंदर है एक तरीके की चीज, वो एजुकेशन है वहां पे, जहां से मार्केटर ले सकते हैं। अगली चीज है कि देयर शुड बी, कि आपको क्या होना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपका प्रोडक्ट जो है वो मेनका की तरह होना चाहिए, और आपका कस्टमर जो है वो विश्वामित्र की तरह होता है। वो कमा रहा है मतलब तपस्या कर रहा है, कमा कमा के पैसों से अपनी जेब भर रहा है और सोच रहा है सेविंग करूंगा फ्यूचर के लिए, तपस्या कर रहा है, फल इकट्ठा कर रहा है। लेकिन उसके उस फल को छीन के ले जाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को मेनका बनाना पड़ेगा। इफ यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट इन द शेप ऑफ द मेनका, डेफिनेटली उसका जो तपस्या ऑफ द विश्वामित्र शेप्ड कस्टमर विल चेंज। उसकी जेब में पैसे हैं, बैंक में जमा करने जा रहा है, लेकिन आपका मेनका रूपी प्रोडक्ट रास्ते में आ गया है। अब उसकी तपस्या डोलने लगी, मन डोलने लगा है, और बैंक में पैसे जमा करने की बजाय उसने अपने प्रोडक्ट को जो है
उठा करके जो अपना पैसा है उससे आपका प्रोडक्ट खरीद लिया और पैसे को जमा करने की बजाय आपके प्रोडक्ट को खरीदने में उसने ज्यादा मजा समझा और उसको ले जा करके कंज्यूम करना शुरू कर देता है, दैट इज योर प्रोडक्ट फिट इन द मार्केट। आप अपने प्रोडक्ट को मेनका बनाइए और आपका जो विश्वामित्र रूपी कस्टमर है उसकी तपस्या डोल जानी चाहिए, उसकी जेब का जो तप रूपी धन है वो हमारे पास आ जाएगा बजाय सेविंग होने के। ऐसी कंडीशन में वो आपकी चीज बन जाएगी। एंड आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे डिस्कशन, and if there is any queries I am ready to answer for such kind of this thing. So now we can understand that which type now we can fit the new product in the market. Thank you very much to all the persons, Sarita Kansal madam, Dr. Sarita Kansal madam, Dr. Ramjahan sir, Director Dean Management Dr. Hari Bapat sir, and DC sir, all the persons. Thank you very much for giving me this opportunity, madam. Yes, sir. Yes, sir. Over the So, madam. any query, sir? Can we take one or two questions if participants have that? Definitely, madam. Participants, if you have any question, you may raise your hand, or you can put your question in the chat box. Dr. Dubey, I have one question. Yeah. Is it जो हम बात कर रहे हैं product fit की, is it same as establishing a brand in the market? Yes, sir. The product also will become the brand after some time. Product will take the shape of the brand. Okay, okay. So basically, we are not talking about brand. We are talking about a product first. We are talking about the very small thing. जब हमने शुरुआत की है, उस शुरुआत को धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे. Automatically, our product will create our brand automatically. Okay, okay. So the concept of product is new in this case. In this case. Okay. So no such product is available right now, and we are introducing that product in the market, and gradually it makes space in the market, right? And it will create its space. It will make its space in the market. Okay. Any other question? Any other questions from the participants? Participants are also requested to fill the feedback form, which is available. The link is available in the chat box. Please do fill the feedback form. Any other question? Jathar sir, there is no question. So I think you should take the charge and wind up the session. Okay, okay. There is no question, so it can be considered that all the people have understood all the things whatever I have tried to make them understand. There are always many questions. Okay. Okay. So good afternoon to one and all. After this wonderful session, I, Sanjay Jathar, the member of MIIC, present here to deliver the vote of thanks. As sir has said, markets are quite volatile nowadays, and the product life cycle has been reduced due to continuous changes in the choices of the customer due to variety of reasons, mainly due to the increasing expectations from the product. Customers are very frequently shift their from one product to other similar products. Today's speaker, Dr. Lalit Dubey, very well explained the concept of the product fit with some effective examples like Vicks Vapor, Parle-G biscuits, Britannia Mary, Dairy Milk chocolate, and many more, which are the products very well fitted in customers' mind. He was able to convince why many products are identified by the brands like Bajaj and Activa for scooter, Nokia for mobile phone, and Jio for telecommunication services, and many more. To fit the products in customers' mind, one has to give due importance to
or due response to consider the customer values, and the company should work for customer delight. It discussed many ways to fit the product in the market. When you care your customer, he will be a brand ambassador. Yeah, he will be the ambassador for your product, and the acceptance of your product will increase in the market. I on behalf of Medicaps University and Medicaps Innovative and Incubation Center, offer heartfelt thanks to Dr. Lalit Dubey for accepting our invitation and providing the insights of product fit. On behalf of Medicaps Innovation and Incubation Center, I convey sincere thanks to Dr. D.K. Patnaik, Honorable Vice Chancellor, Medicaps University, for his guidance and motivation, which always encourage us to organize such events. His vision inspires us to work hard consistently. I also convey sincere thanks to Dr. D.K. Panda, Honorable Pro Vice Chancellor, for his support and motivation to organize the event. Sincere thanks to Dr. Prathiman Yadav, Registrar, for his support and providing the facilities for smooth conduction of the program. Thanks to Dr. Sarita Kansal, Professor in charge MIIC, Professor Ramjanam Singh, Head E-Cell, and members of MIIC for all their support to organize the event. Sincere thanks to Mr. Surikant Soni, Ms. Payal Somani, and Mr. Gajendra Singh, and students of MIIC for their regular backend support. And at last, but not the least, special thanks to all the participants for joining the session and making it a success. It has definitely encouraged us to organize such events in future also. So I hope all of us have understood the concept of product fit in the market. I again sincerely thanks Dr. Lalit Dubey for sharing valuable information with us. So participants, please fill the feedback form using the link which is given in the chat box. Thank you, Dr. Sarita Kansal and Ramjanam sir, once again. Thank you, sir. Thank you very much for giving your valuable time. The link, should we wait for a minute so that everyone can copy the link? Okay, okay. ललित सर, थैंक यू सो वेरी मच. आई मैडम- होप आपकी सेवाएं हमें मिलती रहेंगी.